تو یہ میں اپنی ڈیٹا بیس میں آ چکا ہوں. یہاں پر ہم پرچیز اپلیکیشن میں جاتے ہیں اور اس کی سیٹنگز میں اگر کچھ ہمارے پاس جو ریلیٹڈ آپشنز ہیں ہم اس کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں. پرچیز آرڈر کی اپروولز یہاں پر ہم اس کو ابھی رہنے دیتے ہیں. ہم اگر اس کو ملٹی لیول اپروولز کرنی ہے تو یہاں پر پرچیز آرڈر کی اپروول کا ہمارے پاس آپشن یہاں پر موجود ہے. ریکویسٹ مینیجر کو ریکویسٹ آئے گی اور پھر اس کے بعد جو منیمم اماؤنٹ کے اوپر پرچیز آرڈر کا اپروول ہوگا. تو اگر آپ نے اپنی ڈیٹا بیس کے اندر اپروولز کو ایکٹیویٹ کرنا ہے تو اس چیک کو ایکٹیویٹ کر لیں. اس کے بعد یہ ہمارے پاس آپشن ہے کہ پرچیز آرڈر جب کمپلیٹ ہو جائے تو اس کو لاک کر دیں. اس کو ہم ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں اور یہ وارننگ آپشنز ہے ان آرڈر فار پروڈکٹ اور وینڈرز. اگر کوئی وینڈر یا پھر پروڈکٹ آپ بلاک کرنا چاہ رہے ہیں کسی پرٹیکولر سپلائر کے لیے کہ اس کے آرڈرز پروسیس نہ ہوں تو یہاں پر ہم وارننگ اس کو کلک کر دیتے ہیں تاکہ ہم اس وینڈر کے لیے وہاں پر ریسٹرکشنز لگا سکیں. اس کے بعد ہمارے پاس یہ پرچیز ایگریمنٹ ہے. اگر پرچیز آرڈر سے پہلے ہم ایگریمنٹ ایک ایڈیشنل ڈاکومنٹ جو کہ پرچیز ایگریمنٹ یا پھر ریکوزیشنز ہیں یا پھر بلینکٹ آرڈرز ہیں اگر وہ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس پرچیز ایگریمنٹ کا آپشن ہے. بلینکٹ آرڈرز مینز اگر بلک میں پرچیزنگ کر رہے ہیں تو یہاں پر اس آپشن کو ہم ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. یہ ریمائنڈرز کے لیے یس اس کو ہمیں ایکٹیویٹ کرنا ہے کہ جیسے ہی جو ریسیو ڈیٹ ٹو یور وینڈرز تو ٹھیک ہے اس کو ہم ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں. بل کنٹرول بائی ڈیفالٹ کیا رہے گا؟ آرڈر کوانٹٹی کے اوپر رہے گا یا پھر ریسیوڈ کوانٹٹیز پر. تو ریسیوڈ کوانٹٹیز کے بعد ہم بل کو کریٹ کریں گے, وینڈر بل کریٹ کریں گے تو پرچیزنگ کے لیے یہ آپشن سوٹیبل ہے, ہم اس کو ایکٹیویٹ رکھتے ہیں. اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہے 3 وے میچنگ ہے. اگر ہم اس کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں 3 وے میچز مین جو بل ہے وہ ڈیلیوریز اور پرچیز آرڈر کے ساتھ میچ کرے. جب ہم ورک فلو میں آئیں گے تو پھر اس کو بھی ہم ریویو کریں گے اس آپشن کو بھی. تو اس کو ابھی میں ایکٹیویٹ نہیں کر رہا. ویریئنٹس کو آلریڈی ہم کر چکے ہیں. اس کو آلدو کے جو پرچیز ریلیٹڈ آئٹمز ہیں اس کے اندر ہم ویریئنٹس کریٹ نہیں کریں گے لیکن یہ ریفلیکٹ کرتا ہے یہ آلریڈی ایکٹیویٹڈ ہے سیلز اپلیکیشن میں ریفلیکٹ کرتا ہے. تو ہم نے سیلز اپلیکیشن کے اندر اگر ویریئنٹ کو یا انوینٹوری میں ایکٹیویٹ کیا تو یہاں پر بھی ایکٹیویٹ ہو جائے گا. ویریئنٹ گریڈ انٹری یہ بھی زیادہ سیلز اپلیکیشن سے ریلیٹڈ ہے تو ابھی ہم اس کو ایز اٹ از رہنے دیں گے. یونٹ آف میجرمنٹ بھی یہاں پر ہم نے انوینٹوری کے اندر اس کو ایکٹیویٹ کیا تھا, اس کو ایکٹیویٹ رکھیں گے. پروڈکٹ پیکیجنگ ایک اچھا فیچر ہے. یہ اگر کوئی ایسا پروڈکٹ ہے جو کہ ملٹیپل یونٹس کے اندر پیک ہے تو یہ ہم ایکٹیویٹ کریں گے. اس کو بھی ہم نے انوینٹوری کے اندر ہم نے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا تھا. لاجسٹکس کے اندر ہمارے پاس ڈراپ شپنگ آ رہا ہے جو کہ ریلیونٹ نہیں ہے ڈسکریٹ مینوفیکچرنگ کے ورک فلو میں, تو ہم اس کو ایکٹیویٹ نہیں کرتے. تو یہ جو بیسک سیٹنگز ہیں کوئکلی ہم نے اس کو ریویو کر لیا. اب اس کے بعد ہم یہاں پر کنفیگریشنز کے اندر کچھ اور آپشنز اگر کوئی ریلیونٹ ہے تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. پروڈکٹ کیٹیگریز انوینٹوری میں آلریڈی ہم ڈیفائن کر چکے ہیں تو ایز سچ ہمارے پاس کوئی اور پرچیزنگ اپلیکیشن کے اندر کوئی کنفیگریشن ڈیٹا نہیں ہے. اب ڈائریکٹلی ہم جو وینڈرز ہیں یا پھر سپلائرز ہیں, کرنٹلی سسٹم کے اندر کوئی وینڈر یا سپلائر نہیں ہے تو ہم اس کو امپورٹ کرتے ہیں. تو جس طریقے سے ہم نے پروڈکٹس کو اپلوڈ کیا تھا اسی طرح ہی امپورٹ ریکارڈز پر کلک کر کے ہم جو سپلائرز ہے اس کا ڈیٹا اپلوڈ کریں گے. لیکن یہاں پر ٹیمپلیٹ لینے کے لیے میرے پاس امپورٹ ٹیمپلیٹ فار کسٹمرز یہاں پر لکھا آ رہا ہے تو میں اس کو کلک کر دیتا ہوں. تو یہ میرے پاس res.partner.xls کی فائل ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہے تو اس کو اوپن کر لیتے ہیں. تو یہ میرے پاس ٹیمپلیٹ آ چکا ہے. اس ٹیمپلیٹ کے مطابق میں اس میں جو ڈیٹا ہے وہ اس کو ہم امپورٹ کر لیتے ہیں. تو میں اپنے ڈیٹا میں آ جاتا ہوں, ڈیٹا پریپیئر کر لیتے ہیں. تو یہ میرے پاس ڈیٹا فائل ہے جس میں سپلائر کا نیم آ رہا ہے, انٹرنل ریفرنس نمبر ہے, یہ کیٹیگری آ رہی ہے, اسٹریٹ آ رہا ہے, سٹی, اسٹیٹ, کنٹری,
ज़िप कोड आ गया है, फिर उसके बाद वैट नंबर है, ईमेल, फ़ोन, वेबसाइट, बैंक अकाउंट नंबर, और ये उसके साथ आईबैन नंबर भी है, ये आईबैन है। तो कोशिश करें कि जितना मैक्सिमम डाटा है उसको अपलोड करें। तो अब हम इसको उडू में अपलोड करते हैं। डेटाबेस में मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ इस फाइल को। तो ये मैंने 12 के नाम से डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग 12 ये मैंने डाउनलोड कर लिया। मैं डेटाबेस में आता हूँ और यहाँ पर अपलोड डाटा फाइल पर मैं क्लिक करता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पर डाउनलोड में ये डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग 12 फाइल आ रही है। तो अब यहाँ पर इसका जो हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ये सप्लायर, तो ये मैंने सप्लायर को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर इसकी मैपिंग कर लेते हैं। ये नेम की फील्ड आ गई है, इंटरनल रेफरेंस, ये इम्पोर्टेंट है, मैं इसको मेंटेन करना चाहूँगा। तो ये रेफरेंस हमने कर लिया है। सर्चिंग के लिए एक यूनिक नंबर असाइन कर दिया है सप्लायर को। ये कैटेगरीज टैग के साथ आ गई स्ट्रीट, और ये स्ट्रीट 1 है। यहाँ पर मेरे पास जो स्ट्रीट 1 आ रहा है, लेकिन उर्दू में मेरे पास जो फील्ड है वो स्ट्रीट 2 है। तो ये भी हमने मैप कर दी है, सिटी मैप कर दिया, और उसके बाद ये स्टेट के साथ हम कर देते हैं मैपिंग। ये मेरी स्टेट के साथ हो गई है। अगर यहाँ पर डाटा आ जाता है तो कंट्री है, फिर ये ज़िप है। तो ये मेरे पास ज़िप आ गई है, और उसके बाद ये वैट है। तो ये मैंने यहाँ पर वैट नंबर, यहाँ पर वैट आना चाहिए। वैट हमारे पास कहाँ पर है, वैट की फील्ड। तो मैं इसको टैक्स आईडी के साथ सर्च करता हूँ। यस, टैक्स आईडी के साथ अवेलेबल है। तो यहाँ पर टैक्स आईडी आ गया है, यहाँ पर ये मेरे पास बैंक आ गया है। अब अकाउंट नंबर या आई बैन में से मैं बैंक अकाउंट में ये आई बैन नंबर इसी को ही मेंटेन कर लेते हैं। ये बैंक अकाउंट नंबर है, यहाँ पर ये मैंने इसको मेंटेन कर लिया। अब हम ये फाइल है इसको चेक करते हैं। ये मैंने टेस्ट इसको कर लिया है। तो टेस्ट पर क्लिक किया। अब मेरे पास यहाँ पर दो एरर आ रहे हैं। एक तो मेरे पास जो स्टेट है वो मैच नहीं कर रही, ये मैनी टू मैनी डाटा है। यहाँ पर मेरे पास ये स्टेट्स का डाटा नहीं आ रहा। दूसरा, मेरे पास यहाँ पर बैंक्स का डाटा नहीं आ रहा, बैंक ऑलरेडी ओपन नहीं है। और तीसरी जो कैटेगरीज हैं वो मेरे पास नहीं आ रही, वो ओपन नहीं है। तो कैटेगरीज जो इंडिविजुअल सप्लायर्स हैं उनकी मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं उनको क्रिएट न्यू वैल्यूज़ कर दूँ। तो ये न्यू वैल्यूज़ आ चुकी हैं कैटेगरी, इसको न्यू वैल्यूज़ मैं कर देता हूँ। और ये जो स्टेट्स हैं ये स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, मैं इसमें कस्टमाइज डाटा स्टेट में मेंटेन करना नहीं चाहता, क्योंकि उर्दू ने एक स्टैंडर्ड डाटा मेंटेन किया है। तो मैं इसको यहाँ पर ये कर देता हूँ कि सेट वैल्यू एज एम्प्टी कर देता हूँ। बाद में इन 3 रिकॉर्ड्स को हम मैनुअली इनको करेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर ये बैंक्स चूँकि ओपन नहीं है यहाँ पर, तो मैं इसके लिए भी यहाँ पर बैंक का जो डाटा है वहाँ पर भी सी पॉसिबल वैल्यूज़, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर बैंक का डाटाबेस ओपन होना चाहिए हमारे पास। ओके, ये बैंक नेम अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ बैंक, और बैंक का जो नेम है वो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, बैंक स्लैश बैंक मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब मेरे पास कौन सा डाटा आ रहा है। टेस्ट मैं कर रहा हूँ तो ये मेरे पास तो रॉन्ग अ वैल्यू कैन नॉट बी मैच, तो क्रिएट न्यू वैल्यू है, सेपरेटेड देम बाय ए कोमा, बिल्कुल ठीक है। ओके, वैल्यू इज एम्प्टी, और यहाँ पर भी मैं यहाँ पर कर देता हूँ क्रिएट न्यू वैल्यूज़, यहाँ पर कर देता हूँ, ये भी न्यू वैल्यू क्रिएट करेगा। अब टेस्ट इसको कर लेते हैं। एवरीथिंग सीम्स वैलिड अब बता रहा है, और इसको हम डाटा को इंपोर्ट कर लेते हैं। ये मेरे पास अब
यहाँ पर कंपनीज ओपन हो चुकी हैं। ये मेरे पास कंपनीज का डाटा आ चुका है, ये BYD कंपनी लिमिटेड और ये डिफरेंट सप्लायर्स का डाटा हमने मेंटेन कर लिया। और यहाँ पर हमने जो कैटेगरी है वो भी मेंशन की थी, तो मैं ग्रुप बाय इसको अगर करता हूँ तो ग्रुप बाय हमारे पास हो जाएंगे। यहाँ पर कंपनी टैग टैग वाइज हम कर लेते हैं, तो ये मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक सप्लायर्स हैं, मैन्युफैक्चरर, और ये डिफरेंट सप्लायर्स का डाटा हमारे पास आ चुका है। अब हम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशंस में हमारे पास वेंडर प्राइस लिस्ट है, तो हम वेंडर्स की प्राइस लिस्ट मेंटेन करते हैं जब क्योंकि ये डाटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जब रिप्लेनिशमेंट को हमने कॉन्फ़िगर करना है और रीऑर्डरिंग रूल्स को जब हमने अप्लाई करना है, तो ये वेंडर प्राइस लिस्ट का डाटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये वेंडर प्राइस लिस्ट का डाटा भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इंपोर्ट रिकॉर्ड पर क्लिक करता हूँ, तो अगेन मेरे पास ये टेम्पलेट आ रहा है। टेम्पलेट को ओपन करके रिव्यू कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन सी फील्ड्स आ रही हैं। तो ये मैंने इसको ओपन किया है, तो यहाँ पर मेरे पास वेंडर का नेम है, फिर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नेम है, फिर हम हमारे पास यहाँ पर वेंडर प्रोडक्ट कोड आ रहा है। ये वो कोड है जो कि सप्लायर का कोड है, ये इंटरनल रेफरेंस नहीं है, ये सप्लायर का कोड है। फिर सप्लायर की प्राइस है और क्वांटिटी है, मिनिमम क्वांटिटी जो सप्लायर ऑफर कर रहा है। अगर ब्लैंक है तो कोई लिमिटेशंस नहीं है। स्टार्ट डेट और एंड डेट अगर कोई मेंशन है कि किस डेट से किस डेट तक ये सप्लाई दे सकता है। और डिलीवरी लीड टाइम है, ये डेज़ के अंदर है, कितने डेज़ ये डिलीवरी के लिए लेगा। तो ये डाटा हम मेंटेन करते हैं, इसकी एक्सेल फाइल को रिव्यू करते हैं जो डाटा हमने इंपोर्ट करना है। तो ये मेरे पास अब प्राइस लिस्ट है सप्लायर की, ये डाटा मैंने मेंटेन कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट कोड है, प्रोडक्ट का नेम है, सप्लायर है, ये प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट नेम। ओके, तो ये सप्लायर का नेम है, कंट्री है, सप्लायर कोड है, क्वांटिटी, प्राइस, करेंसी, डिलीवरी लीड टाइम। इसमें कुछ कॉलम्स मेरे पास एक्स्ट्रा हैं, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए मैंने इसमें मेंटेन की हैं। जिस तरह ये कंट्री, ये यहाँ पर मैंने जो लीड टाइम को मेंटेन करने के लिए इसी शीट में रखा था, ताकि अकॉर्डिंगली पता चले कि कितना लीड टाइम है। हालांकि ये लीड टाइम मैंने इतना कोई, यहाँ पर ये 40 डेज़ हैं यूएसए से, चाइना से जब हम इंपोर्ट करेंगे 40 डेज़, और यहाँ पर हम 60 डेज़ लिख देते हैं। तो मैं इस डाटा को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, यूएस से 60 डेज़ और यहाँ पर 45 डेज़ कुछ कर देते हैं हम। यहाँ पर यूएस से है, यूएस से मैं यहाँ पर 45 डेज़ कर देता हूँ। और जर्मनी से भी हम 40 डेज़ कर देते हैं। काफ़ी टाइम रहता है जब हम इंपोर्ट करते हैं। ताइवान से 30 डेज़ और ये 30 डेज़ कर देते हैं। साउथ कोरिया से 45 डेज़ और ये भी, ये चाइना से हम ये 45 डेज़ और यूएसए से 45 डेज़, चाइना से अगेन 45 डेज़। तो ये डिलीवरी लीड टाइम हमने यहाँ पर मेंटेन कर दिया है कि कितने डेज़ लगेंगे मटेरियल रिसीव करने को। ये मटेरियल जो इस वक्त यहाँ पर मेरे पास आ रहा है, ये सारा रॉ मटेरियल है जो कि प्रीवियसली मैंने ओपन किया है। तो अब इस फाइल को हम इंपोर्ट कर लेते हैं, तो सिंपली मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। तो ये मेरे पास 19 नंबर डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग आ गई है। अब मैं अपनी डेटाबेस में आता हूँ, ये मैं डेटाबेस में आ गया हूँ। यहाँ पर हम वेंडर प्राइस लिस्ट पर क्लिक करते हैं और ये मेरे पास इंपोर्ट रिकॉर्ड्स हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये अपलोड डाटा फाइल, और यहाँ पर 19 इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर जो शीट है सप्लायर प्राइस लिस्ट की, वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट कोड आ रहा है, मैप हो रहा है, और ये मेरे पास वेंडर प्रोडक्ट नेम आ रहा है। अगर वेंडर का प्रोडक्ट नेम डिफरेंट है तो यहाँ पर हम वेंडर प्रोडक्ट नेम कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको वेंडर प्रोडक्ट नेम कर दिया है।
सप्लायर के लिए ये सप्लायर का नेम की फील्ड है, ये सप्लायर कोड है, तो मैं सप्लायर कोड को वेंडर के साथ मैप कर देता हूँ, कंट्री की ज़रूरत नहीं है। और सप्लायर की प्रोडक्ट कोड यहाँ पर हम कर देते हैं, जो वेंडर प्रोडक्ट कोड है वो हम यहाँ पर कर देते हैं, क्योंकि वेंडर के पास यहाँ पर ये डुप्लीकेट आ रहा है, ये प्रोडक्ट कोड और वेंडर प्रोडक्ट कोड, लेकिन ये जो ऊपर प्रोडक्ट कोड मेरे पास आ रहा है, ये मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो हम लेंगे यहाँ पर। ये प्रोडक्ट टेम्पलेट मैंने यहाँ पर ले लिया है, तो ये मेरे पास प्रोडक्ट है। और यहाँ पर जो सप्लायर कोड हमने वेंडर ले लिया है, ये वेंडर का प्रोडक्ट कोड है। यूजुअली जो वेंडर होता है वो किसी उसका जो प्रोडक्ट का कोड है वो डिफरेंट रहता है, जो हमने कंपनी ने सिस्टम के अंदर मेंटेन किया होता है। तो यहाँ पर ये प्राइस भी आ गई है, करेंसी आ गई है और डिलीवरी लीड टाइम, ये फील्ड सारी मैप कर ली हैं। उसके बाद मैं टेस्ट पर क्लिक करता हूँ तो एवरीथिंग सीम्स वैलिड है, और उसके बाद हम इसको इंपोर्ट कर देते हैं। ये मैंने इंपोर्ट कर दिया है। अब ये जो प्राइस लिस्ट है ये भी वेंडर की मेंटेन हो गई है। अब प्राइस लिस्ट का हमें बेनिफिट ये मिलेगा कि हम जब इसकी ऑटोमेशन करेंगे, ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली जनरेट करेंगे, रीऑर्डरिंग रूल्स अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो डाटा ऑटोमेटिकली जनरेट होकर आ जाएगा। परचेज ऑर्डर्स और RFQs हम ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकेंगे इस केस में, तो रॉ मटेरियल के लिए। तो ये हमारे पास प्राइस लिस्ट का डाटा भी मेंटेन हो चुका है। वेंडर्स के लिए हम कोई और ऐसी एज सच हम डाटा मेंटेन करने के लिए नहीं जा रहे, वेंडर्स को हम ऑलरेडी मेंटेन कर चुके हैं। अब जब हम इसका वर्क फ्लो डिफाइन करेंगे तो रीऑर्डरिंग रूल्स के थ्रू हम ऑटोमेटिकली जो RFQs हैं वो जनरेट करेंगे।